तो अब अगला टॉपिक है अथॉरिटी वर्सेस पावर। ठीक है, इसको देखते हैं। तो एक तो डायरेक्ट टेबल दे रखा है, ये जो देखा था हमने, डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड पावर। तो पहले इसको पढ़ लें, इसको पढ़ते हैं फिर थोड़ा बाद में जाएंगे। तो अथॉरिटी क्या है? नैरोअर इन स्कोप, बीइंग ओनली अ सबसेट ऑफ पावर। इट इज़ वाइडर इन स्कोप। इट इज़ द लेजिटिमेट राइट ऑफ अ सुपीरियर टू कमांड एंड कंपेल हिज सबऑर्डिनेट्स टू परफॉर्म अ सर्टेन एक्ट। लेजिटिमेट राइट है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू इन्फ्लुएंस अनदर पर्सन टू परफॉर्म एन एक्ट। The ability of a person to influence. It rests in the chair or position. With the change in position, the authority of the individual also changes. A traffic policeman on duty has the authority to direct and control traffic, but after retirement, he cannot do it because he has no authority now. It rests in the individual. Hence, even when his position has changed, his power remains with him. It can be delegated to a subordinate by his superior. A manager who has the authority to purchase machine worth rupees 10 lakh on his own can delegate his authority to his assistant, empowering him to make purchase of worth rupees 10,000 on his own. Power cannot be delegated. A manager who is very able decision manager cannot hand over his ability to his assistant. It is mostly well defined, conspicuous, मतलब clear, बिल्कुल sure क्या सामने सामने, shown on the organization chart, and finite, commensurate with responsibility. It is undefined, inconspicuous, and infinite. Its location cannot be known from the formal organization chart. As a matter of fact, one finds it in unspecified places. It is what exists in the eye of law. It is de jure concept. It is mostly nominal. We find many organization figureheads who are administrator in name only, बस नाम के administrator हैं. They may be regarded as reigning without ruling. Reigning without ruling. और क्या? It is what exists in fact. De facto concept. Some people in organizations exercise significant power far beyond the accepted borders of their authority. They are the real wire pullers behind the figureheads. It serves as basis of formal organization. पावर क्या होती है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस. अच्छा, चलो और देखते हैं थोड़ा. ये अथॉरिटी, organizational authority. It is the formal right of the superior to command and compel his subordinates to perform a certain act. The right to give orders and power to exact obedience. Three functions of authority that deserve special notice. It enforces obedience to norms. Fear of sanctions. He knows if he disobeys, an elaborate set of sanctions may be invoked against him. It secures expertise in making of decisions. Expert advice को वो enable करेगा, enforcement करेगा by specialists. It permits centralization of decision making and coordination of activity. Centralize कर सकते हैं decision making को and force to take mutually consistent decisions. अब सोर्स क्या है फॉर्मल अथॉरिटी का? दो मेजर व्यूज़ हैं रिगार्डिंग ओरिजिन और सोर्स, क्लासिकल और ह्यूमन रिलेशंस. क्लासिकल व्यू, फॉर्मल, ट्रेडिशनल और लीगलिस्टिक व्यू भी कहते हैं. अथॉरिटी ओरिजिनेट्स एट द टॉप इन द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड देन फ्लो डाउनवर्ड टू द सबऑर्डिनेट्स. मैनेजर एट ईच लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम द मैनेजर्स एट द हायर लेवल. जैसे कि असिस्टेंट फोरमैन हो गया, वो किससे करेगा? फोरमैन से. फिर फोरमैन असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर से, ये प्रोडक्शन मैनेजर से, जनरल मैनेजर से और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से. थ्री मेजर बेसिस ऑफ लेजिटिमेसी. अच्छा, ये लिखा है कि सबऑर्डिनेट एक्सेप्ट हिज सुपीरियर अथॉरिटी बिकॉज ही कंसिडर इट टू बी लेजिटिमेट. थ्री मेजर बेसिस ऑफ लेजिटिमेसी आर ट्रेडिशन, रैशनैलिटी, लीगैलिटी एंड करिश्मा. ट्रेडिशन तो वही है भाई कि ट्रेडिशनल सपोर्ट है. रैशनैलिटी, लीगैलिटी मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल सपोर्ट है उसको. करिश्मा क्या है? जो सुपीरियर पोजेस मैग्नेटिक पर्सनैलिटी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी विच इनेबल हिम टू कैप्चर अ ग्रुप ऑफ सपोर्टर्स और एडमायरर्स. ह्यूमन रिलेशंस व्यू क्या कहता है? इसको बर्नार्ड साइमन व्यू और एक्सेप्टेंस व्यू भी कहा जाता है. द अथॉरिटी ऑफ सुपीरियर ओरिजिनेट्स इन द विलिंगनेस ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स टू एक्सेप्ट इट. Authority becomes meaningless unless those affected accept it and respond it. अच्छा, ये सब है, ठीक है.
तो दे मे चूज नॉट टू कंप्लाई विद द ऑर्डर इफ़ इट इज़ आउटसाइड द एरिया ऑफ एक्सेप्टेंट रिगार्डलेस ऑफ इट लेजिटिमेसी एंड द सैंक्शन बिहाइंड इट। और क्या है, नॉट ऑल कमांड्स आर ओबेड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। तो जो वो था व्यू अपना क्लासिकल व्यू, अथॉरिटी ओरिजिनेट्स एट द टॉप एंड देन फ्लो डाउन टू द सबऑर्डिनेट इज़ अ नॉर्मेटिव व्यू। नॉर्मेटिव होता है, और एक और दूसरा भी होता है कोई। नॉर्मेटिव बताता है व्हाट ओज टू बी, नॉट द व्हाट इट द वे इट डज। तो ये लिखा है एक्सप्रेस द वे इट शुड अकर होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, नॉट द वे इट डज। तो ये सब है implications. The manager must know from one command to another that he will be obeyed. A manager has no sanctions or inducements to secure workers' acceptance. तो 3 important inducements है to secure workers' willing or unwilling acceptance of their authority. ये क्या है, use of power, development of influence and reliance on personal leadership. Power, influence और leadership. Power क्या है? Power is the ability or the available potential of a person to influence or to cause another person to perform an act or to change his behavior or attitude. 5 types of power हैं, reward, coercion, referent, expert and legitimate. Reward power of A over B क्या है कि भाई A B को क्या दे सकता है, रिवॉर्ड दे सकता है, A can deliver reward. coercive power of A क्या है कि वो A को पनिशमेंट दे सकता है, पनिशमेंट, A B को पनिशमेंट दे सकता है if B fails to respond to A's attempt to influence. रेफरेंट पावर क्या है कि जो B है ना वो A के एक्शंस को कॉपी करेगा, एमुलेट और इमिटेट A's वर्क हैबिट्स। एक्सपर्ट पावर क्या है कि A हैज़ सम एक्सपर्टीज ऑन अ गिवन सब्जेक्ट। लेजिटिमेट पावर मतलब वही लीगल और ट्रेडिशनल राइट टू डिटरमाइंस B's बिहेवियर। तो लेजिटिमेट पावर सेम एज अथॉरिटी। बाकी 4 भी बन सकती हैं इफ दे आर फॉर्मलाइज्ड। तो मैनेजर इफेक्टिव कब होगा, जब उसके पास राइट टाइप ऑफ पावर होगी। कुछ और भी पावर हैं जैसे करिज्मेटिक पावर फ्रॉम मैग्नेटिक पर्सनैलिटी और सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज़। रिफ्लेक्टेड पावर क्या है, क्लोजनेस टू अ पावरफुल इंडिविजुअल। इमोशनल पावर जैसे मदर की होती है ओवर हर सन। इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ पावर टर्न्स इनटू ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स एंड लीड्स ऑर्गेनाइजेशन टू टेक इरेशनल डिसीजंस। बाकी डिफरेंस तो देख ही लिया हमने। और क्या है, टाइप्स ऑफ पावर, सेंट्रल पोजीशन, डिपेंडेंस, ये सब अभी छोड़ देंगे। इसको टाइप्स ऑफ पावर को छोड़ते हैं। टाइप्स ऑफ पावर ऑफ अ ग्रुप और डिपार्टमेंट, इन्फ्लुएंस क्या है इसको भी छोड़ रहे हैं अभी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसको भी छोड़ रहे हैं। अथॉरिटी शुड इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको भी अभी छोड़ते हैं। तो ना ये टॉपिक के लिए इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से, अथॉरिटी वर्सेस पावर के लिए ना। चलो फिर बढ़िया।